Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Welcome to our online class, subject English, grade 10, Air Foundation School System, Tipu Campus, Rawalpindi. Please open your English book, Unit 1, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mujasma Adl wa Insaf. First of all, I would like to introduce this unit briefly. It is about the justice of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He practically proved that no one could be more just and equitable than him. He was always just and fair in dealings with other people. There are many personal examples of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam showing how he gave justice to the people. Now I explain this introduction in Urdu also. ये मज़मून हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के मुतल्लिक़ है। उन्होंने अमली तौर पर साबित किया कि कोई फ़र्द आपसे ज़्यादा मुनसिफ़ और मसावात का अलमबरदार नहीं हो सकता। पैगम्बर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी मिसालें हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि आपने लोगों से किस तरह इंसाफ किया। नाउ सी पैराग्राफ नंबर 1, पेज 2। Hazrat Muhammad's Sallallahu Alaihi Wasallam life is a perfect modeling example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical examples for all mankind to follow in every field of life. Now एक्सप्लेनेशन इन उर्दू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इन लोगों के लिए कामिल मॉडल और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में अच्छाई तक को हासिल करना चाहते हैं। लोग ज़िंदगी को अखलाकी, रूहानी और समाजी तौर पर मिसाली बनाने के लिए इनकी ज़िंदगी के पैगाम और रहनुमाई से रोशनी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी अमली मिसाल से ज़िंदगी के हर शोबे में इंसानों की तकलीद के लिए बुलंद और आला मकसद रखे हैं। पैराग्राफ नंबर 2। Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved from them from a tribal conflict. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि अल्लाह ताला के रसूल से कोई बड़ा इंसाफ पसंद और मसावात का हामी नहीं है। नौजवान ताजर की हैसियत से आपने ईमानदार और इंसाफ पसंद ताजर की हैसियत से अच्छी शोहरत पाई। आपने लोगों से हमेशा इंसाफ पसंदाना बर्ताव किया। जब काबा की तामीर हो रही थी तो लोगों में हज़रत असवद का झगड़ा खड़ा हो गया। उन्होंने हज़रत असवद को लगाने का मंसूबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत असवद को लगाने का बड़ा इंसाफ पसंदाना मंसूबे का मशवरा दिया और वो सब कबायली कशमकश से और झगड़े से बच गए। पैराग्राफ नंबर 3। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी इररिस्पेक्टिबल ऑफ कलर, creed or race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zaid to intercede on her behalf. Hazrat Usama Raziyallahu anhu requested the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam to forgive her. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. मदीना की रियासत के सरबराह की हैसियत से आप बिला लिहाज रंग, अक़ीदा और नस्ल तमाम मामलात मेरिट पर इंसाफ और बराबरी के फैसले से करते थे। एक दफ़ा कुरैश खातून चोरी की मुर्तकिब पाई गई। चंद लोग कुरैश ख़ानदान की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस सज़ा से बचाना चाहते थे। उन्होंने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि वो इसकी तरफ से मुदाखलत करें। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसे माफ़ करने की दरख्वास्त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरहमी में जवाब दिया, यानी गुस्से में जवाब दिया, बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हुए, वो गरीबों पर कानून का इतलाक़ करते और अमीरों को छोड़ देते। देखें, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बनी इसराइल वाज रूइंड बिकॉज ऑफ दिस, दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगॉट द रिच, यानी वो गरीबों को नहीं छोड़ते थे और अमीरों को माफ़ कर देते।
Paragraph number 4. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there, stood up and pointed towards them and said, "O Rasul of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that." The Rasul sallallahu alaihi wasallam replied, "The revenge of the father cannot be taken on his son." स्टूडेंट देखिए, नोट करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन सन, यानी बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। आई एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन उर्दू ऑल्सो। वास के दौरान एक अंसारी ने बनु तालबा के कुछ आदमियों को देखा और खड़ा होकर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाह के रसूल, इनके एक आबा अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक रुकन को कत्ल कर दिया था। हम आपसे अपील करते हैं कि इनके बदले में एक फ़र्द को फांसी दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आपका इंतकाम बेटे से नहीं लिया जा सकता। Paragraph number 5. The Rasul was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him, and he decided cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them. For Allah loves those who judge in equity. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंसाफ से इतने मशहूर हुए कि यहूदी जो आपके सख्त दुश्मन थे वो भी अपने मुकदमे आपके पास लाते और आप इनके केस यहूदी कवानीन के मुताबिक फ़ैसले करते। आप अल्लाह के नकामत पर सख्ती से अमल करते कि अगर वो आपके पास आएँ तो इनका फ़ैसला कर दें या इनकार कर दें। अगर आप इनकार करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर फ़ैसला करते हैं तो इनमें इंसाफ से फ़ैसला करें, क्योंकि अल्लाह इंसाफ से फ़ैसला करने वालों को पसंद करते हैं। स्टूडेंट, लुक एट दिस लाइन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ दे कम टू यू, ये कुरान शरीफ के अल्फाज हैं। इफ़ दे कम टू यू, आइदर जज बिटवीन देम और डिक्लाइन टू इंटरफेयर। इफ़ यू डिक्लाइन, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट। इफ़ यू judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. Now paragraph number 6. Justice demand that it should be upheld in every circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. It is reported by Hazrat Ali radhiyallahu anhu that Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Hazrat Muawiyah reported Allah's Rasul as saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. इसका तर्जुमा मैं आपको बता दें। देखें कि इसमें भी एक दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि अली को कहा कि व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, जब आपके दो लोग आते हैं जजमेंट के लिए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन, कभी ये फैसला ना करे विदाउट हेयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, जब तक आप दूसरे का आर्गूमेंट्स नहीं सुन लेते। यानी दो लोग आते हैं तो आप पहले उनसे दोनों के आर्गूमेंट सुने फिर फैसला करें। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली डेट यू विल नो द ट्रूथ। जब दोनों को सुन लें फिर आपको सही पता चलेगा सही चीज़ क्या, ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है। एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन उर्दू आल्सो। इंसाफ का तकाजा होता है कि इस पर तमाम हालात में कायम रहा जाए, अगरचे आपके ख़ानदान रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ हो। तमाम उम्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के मामलात के इंसाफ से फ़ैसला किया और सहाबा से फरमाया इंसाफ पर कायम रहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, जब दो आदमी इंसाफ लेने आए तो दूसरे को सुने बगैर एक के हक़ में कभी भी फैसला दें, फिर इसका गालिब तरीन इम्कान है कि आपको सच का इल्म हो जाए। हज़रत मुआविया से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई हुक्मरान या जज जो गरीबों ज़रूरतमंदों और लाचारों पर दरवाजे बंद कर दे, अल्लाह उसको दरवाजे बंद करता है जब वो ज़रूरतमंद और नादार होते हैं। Now please paragraph number 7, page number 4. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, if I owed something to anyone, or if I wronged any person, or damaged anyone's property or honor, my person, my honor, and my property are here. He may take revenge on me in this world. There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him.
आप सर जब अपने डेथ बेड पर थे, आपने कहा किसी कोई चीज़ मेरे ज़िम्मे ही है, या मैंने किसी शख्स से कोई ज़्यादती की है, या किसी की जायदाद इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया, मेरी इज़्ज़त और जायदाद हाजिर है, वो इस दुनिया में उनसे इंतकाम ले सकता है। मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ एक शख्स ने चंद दरहम का तकाजा किया जो अदा कर दिए। देखें दिस पैराग्राफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब डेथ में उठते तो आपने कहा इफ़ आई ओर समथिंग टू एनीवन, यानी अगर टू एनीवन, यानी मैंने किसी को कोई चीज़ देने हैं, इफ़ आई रॉन्ग एनी पर्सन, यानी मैंने किसी को ज्यादती किया, और डैमेज एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, या किसी की प्रॉपर्टी उसके ऑनर को नुकसान पहुँचाया। माई पर्सन, माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हेयर, यानी मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त सब और मेरी जायदाद यहाँ पर है। ही मेड टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस, वो मुझसे इस दुनिया मुझसे बदला लेता है बजाय से कि आखिरत में जाके मुझसे बदला ले। यानी हमें अपने हिसाब किताब यहीं पूरे कर लेने चाहिए, लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इंसाफ से काम लेना चाहिए। ओके, नाउ द पैराग्राफ नंबर 8, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस यूनिट। Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm and just than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembrance of Allah. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से साबित किया कि आपके मुकाबले में कोई शख्स भी इंसाफ पर ज़्यादा सख्ती से कायम न था, चाहे वो इनके या इनके करीबी और अजीज लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ हो। आप हर केस जो दोस्त या दुश्मन हो, इसका फैसला इंसाफ से बिला खौफ व ख़तर करते थे। ऐसा अजीम इंसान वक्त और जगह की रुकावट को ख़ात्मे में नहीं लाता। हर दौर के इंसान मुख्तलिफ़ शोबों की सरगर्मियों की रहनुमाई के लिए इनकी ज़िंदगी से कुछ न कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी इस पहलू पर कुरान पाक वाज़िह तौर पर बयान करते हैं। यकीनन इनके लिए जो अल्लाह से और यौम आखिर से मिलने की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह को खूब याद करते हैं, इनकी तकलीद के लिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी मिसाल है। Now come to the glossary, difficult words of this unit. Please look attentively at page 5. I explain its meaning. The first word is ancestor. It means distant relation with somebody is ascended from, यानी अबा अजदाद. Second one is destitute, महरूम या मोहताज, with no money or possessions. Third word is equitable, बराबरी, मसावात, fair. Firm, definite, अटल, साबित कदम. Foe, an enemy in battle or war, दुश्मन. Intercede का मतलब किसी के लिए कोशिश करना. To speak in support of somebody involved in a dispute, दरमियान में पड़ना, सुलह करवाने के लिए. मैग्नीट्यूड का मतलब है इम्पोर्टेंस ऑफ और इफेक्ट. वो का मतलब मकरूज होना. हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी. नेक्स्ट वन है द रिवेंज, बदला लेना, इंतकाम लेना. समथिंग डेट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू. सी का मतलब हासिल करना, टू गेट. नाउ आई मस्ट टेल यू अबाउट द theme of the story. Theme of the story is very important. Please look it at attentively because it may come in your result, and it may come in your exams. Theme है Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam is a great example to all mankind. A number of incidents give evidence of the Rasul's justice. He abided by Allah's commands even with the non-Muslims and never made any concessions in implementation of justice. The Rasul sallallahu alaihi wasallam dealings with the non-Muslims is the best example to follow for the Muslims. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आपकी जस्टिस है, हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है कि हम उसको फॉलो करें. Now unit 1 has not been completely fully explained to you. Questions of this unit and their detailed answers will be given to you through notes as homework for holidays. There will be a test of questions and their answers as soon as the school reopens. Okay.